Namaste students, myself Aman Swami, Associate Professor in Jyoti Vidyapeeth Women University. Dear students, today we are discussing on our pharmacology next topic, route of drug administration. What is the route of drug administration? A drug in which introduced into the body, a drug in which introduced into the body using path is known as route of drug administration. एक ऐसा पाथ जिसमें ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पाथ, वो रूट हमारा क्या कहलाता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. नाउ इट इज द रूट एंड नाउ डिस्कशन ऑन ड्रग. वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इज सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट, प्रिवेंट एंड mitigation of the disease is known as drug. And third one is administration. A path in which drug is introduced is known as administration or route of drug administration. Now going to discussion on as a definition, a path in which drug is introduced into the body is known as route of drug administration. Route of drug administration are two types. One is internal and second is parenteral. What is internal? Internal route, a drug in which drug are introduced into the body या intake into the body via oral route and drug is metabolized by intestine. Drug is metabolized by intestine. This is known as enteral route. या ऐसे भी कह सकते हैं bind with the route of metabolism is intestine is known as internal route. Then second is parenteral route. Drug is out of intestine. मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें इंटेस्टाइन को यूज ना करते हुए ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है या ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है या ड्रग मेटाबोलाइज होती है. दिस पाथ इज नोन एज पेरेंटल रूट. ओके, नाउ अगेन रिपीट करते हैं थोड़ा सा. एंटर रूट इन विच root is used as a intestine and drug is not used in metabolism for parenteral route in intestine. Now parenteral route are different kinds. One is sublingual route. What is the sublingual route? Under the tongue route, drug is introduced under the tongue. Drug is introduced under the tongue and drug is metabolized by sublingual route. Drug is metabolized by, introduced and metabolized by sublingual route is known as sublingual route. This is the part of parenteral route. Now again, next, buccal route. What is the buccal route? Drug is administered under stand cheek, under cheek gobs is known as buccal route. Again, next, rectal route. Drug is introduced into rectal cavity. Drug is introduced into rectal cavity. This is now known as rectal route. And drug is like magnesium sulfate substance and enema. Enema is used through this rectal route for cleaning intestine for surgical activity. Now again, next, subcutaneous route. Drug is administered into subcutaneous cavity. Drug is administered into subcutaneous cavity is known as subcutaneous route या SC route. Again, this route in drug type administered like as insulin type drug are administered through this route, subcutaneous route. या allergy testing route. This route is known as allergy testing route. ड्रग की एलर्जिक टेस्टिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए इस सबक्यूटेनियस रूट का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, इनहेलेशनल रूट. ड्रग आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. ड्रग आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी थ्रू नेजल कैविटी. ड्रग आर यूज टू introduce into nasal cavity or through pore of nose is known as inhalational or nasal route. Next, one is inhalational route. In this route, drug are introduced into the mouth. Drug are introduced
into the mouth. This is route known as inhalational. Like that, asthmatic patient, drug used as inhaler for aerosol container. Aerosol container are used for asthmatic patient. This is drug type of administration, inhalational type. And nasal route, drug are administered into the body through nasal cavity. This is a nasal route, and this type of drug used for clear the nasal pore. Clear the nasal pore. This route is known as nasal route. Okay, next, intramuscular route. Drug are administered into muscular cavity या muscular junction is known as intramuscular route. This is the buttocks. Buttocks muscles are used for mostly for drug administration. Okay, next, intravenous. Drug are administered या introduced into the vein. Drug are administered or introduced into the vein. This route is known as intravenous or IV route. Okay, next, intra-arterial route. Intra-arterial route. Drug are administered into peripheral tissue. Drug are administered into peripheral tissue is known as intra-arterial route. Okay, next, intramedullary. What is the medullary? Medulla, bone marrow. Drug are introduced into bone marrow. अस्थि मज्जा, जो बोन का एक्सट्रैक्ट पार्ट होता है, उसके अंदर में ड्रग अपन इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द रूट नाउन एज इंट्रामेडुलरी रूट. ओके, नेक्स्ट, इंट्रा-आर्टिकुलर. Drug are introduced into the joints, knee joints, hand joints, and or fit joints. Different types of joints in which drug is introduced into the joint is known as intra-articulation route. Okay, intra-articular route. Okay, next is intraperitoneal route. What is the intraperitoneal? The drug are used for dialysis. जो डायलिसिस की प्रोसेस रहती है उस दौरान जो अपन कैविटी यूज करते हैं, दिस इज नाउन एज इंट्रापेरिटोनियल कैविटी. और ये डायलिसिस जो डायरेटिक्स एज जो अपनी किडनी होती है, उन किडनी का डायलिसिस किया जाता है, उस दौरान जो रूट यूज किया जाता है, दिस इज द इंट्रापेरिटोनियल रूट. दीज आर द पार्ट ऑफ पेरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस इज नाउन एज आउट टू इंटेस्टाइन मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म का कोई इन्वॉल्वमेंट, जिसमें इंटेस्टाइन का मेटाबॉलिज्म के लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. दिस इज रूट नाउन एज पेरेंटल रूट. एंड जिस रूट के अंदर इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट होती है, दिस इज नाउन एज एंट्रल रूट. दिस इज बियॉन्ड टू इंटेस्टाइन, दिस इज नॉट बियॉन्ड टू इंटेस्टाइन. ओके, नाउ दीज आर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन ड्रग नेचर. सिलेक्शन ऑफ ड्रग, कैसे हम ड्रग का सिलेक्शन करें, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे, उसकी एक्शन एक्टिविटी पे, पेशेंट की एक्टिविटी पे, देन उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पे. इन सब पे क्या करता है? ये सिलेक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ ड्रग? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी. ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज लाइक दैट सॉलिड. ड्रग इज इन विच फॉर्म? सॉलिड फॉर्म, गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या अनदर फॉर्म. This is the very important factor in selection of drug. If drug is in solid form, drug you take in through oral cavity, drug then under disintegration, dissolution, then after metabolism. And if drug is gas or solid, gas or liquid, as comparison to solid, they are easily metabolized. एंड बायोबिलिटी इज 100%. क्योंकि जब अपन सॉलिड ड्रग जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ओरल रूट के थ्रू, तो ड्रग जब जाएगी वो इसी ओरल रूट में पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसॉल्व होगी, फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, ये प्रोसेस रहेगी. लेकिन गैस और लिक्विड सब्सटेंस में क्या रहेगा? डायरेक्टली बॉडी के अंदर अप्लाइड होगी, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगी. जैसे लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे? अपने आईवी रूट से दिया, तुरंत क्या है उसका अपने को एक्शन मिलेगा. या अगर लिक्विड फॉर्म में मैं अगर ओरली भी यूज करूं तो क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन की प्रोसेस को इसको पास नहीं करना पड़ेगा. दिस इज द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस एज कंपैरिजन टू सॉलिड. तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. नाउ साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड. इफ यू टेक ड्रग थ्रू ओरल रूट, take long duration action or long time in metabolism process and long time in metabolism. But if you take
if you intake this drug are through IV route, IM route and another route through parenteral cavity, parenteral route, this is the site of desired action is fast, like that. अगर आपने IV ड्रग से कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाई तो वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर आपके इन्वॉल्व होगी और डायरेक्टली उसका मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होनी है वो फास्ट होगी एज कंपेरिजन टू ओरल, क्योंकि ओरल कैविटी से जाएगी तो उसको डिजोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा. दिस इज द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन. नाउ थर्ड इज बायोबिलिटी. व्हाट इज द बायोबिलिटी? ड्रग आर रिटेन आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम. दिस इज नाउन एज बायोबिलिटी. कैसे? कोई ड्रग आपने आईवी ली, एक ड्रग आपने ओरल ली. आईवी ड्रग ली है उसकी बायोबिलिटी 100% होगी. क्यों? क्योंकि वो ड्रग पूरी की पूरी ब्लड के अंदर आपके पहुंच चुकी है. लेकिन जब आप ओरल रूट से लेंगे तो ड्रग कहीं ना कहीं क्या है, इतने पास से होकर के गुजरेगी तो उसकी कुछ एक पार्ट्स क्या है, डिग्रेड हो जाएगा. मतलब जब अपने को इसका मेटाबॉलिज्म या इसकी एफिशिएंसी मिलेगी वो 70 to 80% की एफिशिएंसी इसकी अपने को मिल पाएगी. दिस इज द डिफरेंस इन बायोबिलिटी ऑफ आईवी एंड ओरल रूट. ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. ड्रग की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है. कैसे? इफ ड्रग गिव्स थ्रू ओरल रूट, इफ ड्रग इज इनटेक थ्रू ओरल रूट या गिव्स थ्रू ओरल रूट, some hurdles are in this dissolution, disintegration. These hurdles are comes. ये hurdles क्या करती है कि उस ड्रग की बायोबिलिटी को या उस ड्रग की एफिशिएंसी को डिग्रेड कर देती है और जो अपने को एफिशिएंसी मिलेगी वो 70 to 80% वी हैव प्रीवियसली डिस्कस. 70 to 80% ही मिलेगी इसमें अपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लेकिन अगर यही चीज बाईपास मेटाबॉलिज्म या आईवी रूट बोल सकते हो आप इसको, आईवी रूट से होगी तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म है या उसकी बायोबिलिटी है वो अपने को 100% मिलेगी. इसमें कितनी मिली थी एफिशिएंसी? 70 to 80. उसमें एफिशिएंसी 100% मिलेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स. अब ड्रग की रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि अगर अपनों को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो अपन क्या करेंगे, ड्रग को अपन आईवी रूट से एडमिनिस्टर करेंगे. ठीक है. और अगर मतलब क्या बोल सकता हूं इसको, अपन सीवियर, अगर कोई पेशेंट है सीवियरिटी में है तो उसको अपने क्या है, रिस्पॉन्स अपने को फास्ट चाहिए क्योंकि वो कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, आईवी रूट यूज करेंगे और आईवी रूट से क्या है, तुरंत प्रभाव से अपने को उसका एक्शन मिलेगा ना. ओके, माइल्ड, अगर अपने को थोड़ा बहुत उसकी एक्टिविटी माइल्ड है, मतलब उसकी डिजीज है माइल्ड टाइप है, अपन उसको वो बियर कर सकता है तो अपन उसको क्या है ओरल रूट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे. यहाँ पेशेंट वेरी करता है, अपने पेशेंट को बचाना है तो इसलिए क्या है उसकी रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा. नाउ ओके, कंडीशन ऑफ पेशेंट डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट. पेशेंट की पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है कि वो ड्रग ले सकता है इजीली या नहीं ले सकता है. अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग हो रही है तो दैट इज नॉट इन टेक द मेडिसिन थ्रू ओरल रूट, तो इसके लिए अपन को क्या है आईवी रूट ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको सचेतना ही नहीं है, जिससे उसको होश ही नहीं है. ओके, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी रूट ही प्रेफर करेंगे, पेरेंटल रूट ही दिया जाएगा क्योंकि वो ओरल रूट से ले ही नहीं पाएगा. दिस इज द डिफरेंस इन दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग. दीज फैक्टर आर डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग नेचर, ड्रग एक्शन, बायोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट. दिस इज द सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड route of drug administration part. Now meet on next video. Thank you.